Hello everyone. Now I am going to talk about the topic Department of Public Instruction. Now again welcome in video lecture class. The specified topic related to the AMED semester 1 paper 3 education studies in unit 4. मैं आज बात करने जा रहा हूँ एमएड सेमेस्टर 1 के अंतर्गत पेपर एजुकेशन स्टडीज में यूनिट 4 का एक टॉपिक है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन द सेंस लोक शिक्षण विभाग. जब कोई भी दैट मीन्स वेन एवर वी हैव टू टॉक अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन द सेंस दैट मीन्स इंस्ट्रक्ट some things or some matter or fact by the other or for the learner, यानी कोई सीखने वाले या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं. कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा विभाग जिसमें कि कुछ निर्देश कुछ बातें किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कही जा रही हैं. अगर इस चीज को निर्देशात्मक प्रक्रिया को इंस्ट्रक्शनल मेथड को क्लासरूम सिचुएशन के लिए या क्लासरूम के अधीन बात करें तो वो चीज़ें स्पष्ट तौर पर आती हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया. तो हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन द सेंस दैट मीन्स इट इज आल्सो नोन एज स्कूल एजुकेशन, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. बट इन द इनिशियल फेज मैं शुरुआत में सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा गया है और इसका ब्रीफ हिस्ट्री क्या है. तो अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा और विस्तार से बताने जा रहा हूँ. Now, first discuss about the topic Department of Public Instruction in English version. The Department of Public Instruction, also called as Department of School Education, is one of the largest and oldest department of the state government. Public education is a system of institutions and measures that ensures the education and upbringing of a people in accordance with interest and requirements of the society and the state. In a number of countries, there are private and religious as well as state-run educational institutions. Now, the public education system includes preschool institutions, general education schools of all types, technical, vocational schools, specialized secondary and higher educational institutions, and various forms of on the job training and courses to improve workers' qualification as well as extracurricular institutions. In all countries, the foundation of the public education system is the primary elementary education. The duration of primary education varies from 3 to 6 years. In some countries, there is no continuity between elementary and secondary education. A special link has been introduced into public education, the intermediate or middle school, sometimes called supplementary school, which prepares pupils for enrollment in secondary schools. Secondary education is usually a 6-year term of instruction. Secondary education is provided in all types of secondary educational schools, in vocational technical schools which offer a general secondary education as well as vocational training, and in specialized secondary educational institutions. Now, next point, higher education is furnished by universities, institutes, higher schools and certain types of colleges which usually offer 4 to 6 years courses of study. The Department of Public Instruction is the state agency that advances public education and libraries. Our goal is to ensure every child ready for education and the workplace. Our vision, knowledge means proficiency in academic content, skills
application of knowledge through skills such as critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Habits, behaviors such as perseverance, responsibility, adaptability, and leadership. These proficiencies and attributes come from rigorous, rich, and well-rounded public school experiences. Our mission, effective instruction. Each student is taught by teacher using high quality standard aligned culturally responsive material and practices. School and instructional leadership. Each student's need are met in school led by high quality and effective educators. Family and community engagement. Each student attends a school that authentically engages with families, communities, and libraries. Safe and supported students. Each student learns in an environment that promotes social, emotional, and physical well-being, removes barrier to learning, meaningful relationship with student. Each student has meaningful connection with at least one adult in their school. Now, Government of Jharkhand is also working towards strengthening the basic format of education of Jharkhand. Department of Public Instruction in Jharkhand, Director Primary Education, Director Secondary Education, Additional Director Secondary Education, Director Higher Secondary. The department has a secretariat and field department with a 3-tier structure at a state, district, and block level. The field departments of public instruction and adult education are under the Jila Panchayat and Taluk Panchayat. Jharkhand education is centered on the examination conducted under the state board, universities and colleges. Jharkhand Madrasa Examination Board, Jharkhand Intermediate Exam Board, Jharkhand Secondary Examination Board, the universities and college campuses, the education in Jharkhand. Now, Jharkhand Secondary Examination Board and Jharkhand Intermediate Exam Board now as a JAC, that means Jharkhand Academic Council. Sarv Shiksha Abhiyan is the joint initiative of Government of India and state government to achieve the goal of universalization of elementary education in a time frame. The DPI, that means Department of Public Instruction, and SSA, Sarv Shiksha Abhiyan, are jointly working to achieve the said goal. The Sarv Shiksha Abhiyan is an extensive scheme adopted by the government and is carried out to universalize primary education in every corner of the state. Now, अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। लोक शिक्षण विभाग, लोक शिक्षा विभाग जिसे स्कूल शिक्षा विभाग भी कहा जाता है, राज्य सरकार के सबसे बड़े और पुराने विभागों में से एक है। लोक शिक्षा संस्थानों और उपायों की एक प्रणाली जो समाज और राज्य के हितों और आवश्यकताओं के अनुसार लोगों की शिक्षा और परवरिश सुनिश्चित करती है। कई देशों में निजी और धार्मिक साथ ही राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थान है। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पूर्व स्कूल संस्थान, सभी प्रकार के सामान्य शिक्षा विद्यालय, तकनीकी व्यावसायिक विद्यालय, विशिष्ट माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थान और श्रमिकों की योग्यता में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के ऑन द जॉब प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम शामिल हैं। सभी देशों में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की नींव प्राथमिक यानी प्रारंभिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा की अवधि 3 से 6 साल तक भिन्न होती है। कुछ देशों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बीच कोई निरंतरता नहीं है। एक विशेष लिंक, दैट मीन्स कनेक्टिंग, जिसको जुड़ाव कहते हैं, सार्वजनिक शिक्षा में पेश किया गया है। मध्यवर्ती या मध्य स्कूल, कभी कभी पूरक स्कूल कहा जाता है, जो माध्यमिक स्कूलों में नामांकन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करता है। माध्यमिक शिक्षा आमतौर पर निर्देश के 6 साल के कार्यकाल में प्रवेश करती है। सभी प्रकार के माध्यमिक शैक्षिक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती है और विशिष्ट माध्यमिक शैक्षणिक संस्थानों में, व्यावसायिक तकनीकी स्कूलों में, जो एक सामान्य माध्यमिक शिक्षा साथ ही साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों, संस्थानों, उच्च स्तर विद्यालयों और कुछ प्रकार के महाविद्यालयों से सुसज्जित होती है, जो आमतौर पर 4 से 6 साल के अध्ययन का पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। लोक शिक्षण विभाग वह राज्य एजेंसी है जो सार्वजनिक शिक्षा और पुस्तकालयों को आगे बढ़ाती है। हमारा लक्ष्य हर बच्चे को शिक्षा और कार्यस्थल के लिए तैयार करना है। हमारी दृष्टि, दैट मीन्स ज्ञान, शैक्षणिक सामग्री में प्रवीणता, कौशल, महत्वपूर्ण सोच, संचार, सहयोग और रचनात्मक जैसे कौशल के माध्यम से ज्ञान का अनुप्रयोग, आदतें यानी हैबिट, दृढ़ता, जिम्मेदारी, अनुकूलनशीलता और नेतृत्व जैसे व्यवहार, ये प्रवीणताएं और विशेषताएं कठोर, समृद्ध और अच्छी तरह से गोल यानी उद्देश्य
पब्लिक स्कूलों के अनुभव से आती है। हमारा लक्ष्य प्रभावी निर्देश, प्रत्येक छात्र को उच्च गुणवत्ता मानकों, संरेखित सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी सामग्री और प्रथाओं का उपयोग करके शिक्षकों द्वारा सिखाया जाता है। स्कूल और निर्देशात्मक नेतृत्व प्रत्येक छात्र के जरूरतों को उच्च गुणवत्ता और प्रभावी शिक्षकों के नेतृत्व वाले स्कूलों में पूरा किया जाता है। परिवारों और समुदाय से जुड़ाव, प्रत्येक छात्र एक ऐसे स्कूल में जाता है जो प्रामाणिक रूप से परिवारों, समुदाय और पुस्तकालयों से जुड़ा होता है। सुरक्षित और समर्थित छात्र, प्रत्येक छात्र एक ऐसे वातावरण में सीखता है जो सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देता है और सीखने की बाधाओं को दूर करता है। छात्रों के साथ सार्थक संबंध, प्रत्येक छात्र अपने स्कूल में कम से कम एक व्यक्ति के साथ सार्थक संबंध रखता है। झारखंड सरकार झारखंड की शिक्षा के मूल प्रारूप को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रही है। झारखंड सरकार के लोक शिक्षण विभाग के अंतर्गत निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक उच्चतर माध्यमिक विभाग के पास राज्य और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना वाला एक सचिवालय और क्षेत्र विभाग है। लोक शिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र विभाग जिला पंचायत और तालुक पंचायत के अधीन है। झारखंड शिक्षा राज्य बोर्डों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के यानी महाविद्यालयों के तहत आयोजित परीक्षाओं के आसपास केंद्रित है। झारखंड मदरसा परीक्षा बोर्ड, झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा बोर्ड, झारखंड माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में झारखंड में शिक्षा शामिल है। ये मैंने इसके बारे में बताया, फिर मैं बता रहा हूँ। झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा बोर्ड और झारखंड माध्यमिक परीक्षा बोर्ड, जो कि वर्तमान में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंतर्गत नाम से जाना जाता है। सर्व शिक्षा अभियान एक समय सीमा के भीतर राज्य में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार और भारत सरकार की संयुक्त पहल है। DPI यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन यानी लोक शिक्षण विभाग और सर्व शिक्षा अभियान SSA संयुक्त रूप से उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना एक व्यापक योजना है। इस प्रकार से मैंने इसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को स्पष्ट किया। Now, on the basis of above discussion, it indicates that Department of Public Instruction play a significant role and also known as it is a multi-dynamic way। एक ये बहुआयामी या बहुआधारित एक प्रक्रिया है जिसमें कि सबसे बड़ा एक विभाग और वो विभाग स्कूल यानी शिक्षा विभाग है। उसके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है, लोक शिक्षण विभाग। इसका स्पष्ट आधार ये है कि लोगों को कैसे साक्षर किया जाए, उसकी स्किल बढ़ाई जाए और उसके व्यवसायिक क्षमताओं का विकास किया जाए, जिससे कि सभी बच्चे जो है आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये चीज़ें निश्चित ही महत्वपूर्ण है और भारत सरकार या झारखंड के अधीन जो डिपार्टमेंट काम करते हैं, इनकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है कि कैसे जो बच्चे खासकर चारों लेवल के यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या कॉलेज लेवल के हैं, उन्हें कैसे गतिमान करें और कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। तो इस वीडियो को आप जो है वह अच्छी तरह से सुनें, देखें और साथ ही साथ नोट्स तैयार करें। नेक्स्ट क्लास में मैं मिनिस्ट्री ऑफ HRD के बारे में यानी मिनिस्ट्री के बारे में और उससे संबंधित जो एजेंसियाँ जाएँ गवर्नमेंट की, उसके बारे में बात करूँगा। और इस वीडियो को मैं YouTube में अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो आपको तुरंत मिल जाएगा, अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले क्लास की वीडियो जो होंगे वो अपलोड होते के साथ तुरंत आपको प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले क्लास में। धन्यवाद।